السلام علیکم ناظرین، پروگرام دن بھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ ڈائریکٹر جنرل ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مسلح افواج حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واضح رہے کہ یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں یہ خصوصی پریس کانفرنس تھی جو کہ کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل انتہائی ضروری ہے۔ بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کالعدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کہا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردوں کے خلاف 2000 سے زائد آپریشنز کیے گئے ہیں۔ 15 روز 24 خوارجی دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاک افواج کا ہر افسر اور جوان اپنے وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مافیا پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا۔ پاکستانی افواج کے افسران اور جوان متوسط طبقے کے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 23,622 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں۔ 2045 آپریشن کیے گئے۔ صرف ان 15 دنوں میں آپریشنز کے دوران 24 دہشت گرد واصلے جہنم کیے گئے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے۔ آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق۔ رواں سال دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 2000 سے زائد آپریشن کیے گئے ہیں، جبکہ 2 دہشت گرد تنظیموں پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ یہ بتانا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا، جبکہ ٹی ٹی پی کو خوارج الفتنہ کے نام سے نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور جو دہشت گرد ہیں ان کو خارجی کے نام سے پکارا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں دہشت گردوں کے خلاف 2000 سے زائد آپریشن کیے ہیں۔ 15 روز میں 24 خوارجی دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ پاک افواج کا ہر افسر اور جوان وطن کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مافیا پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا۔ پاکستانی افواج کے افسران اور جوان متوسط طبقے سے ہیں، اشرافیہ سے نہیں۔ کیا تنقید کی وجہ سے تعلیم اور صحت کا کام کرنا چھوڑ دیں؟ پنجاب میں 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو زیر کاشت لایا جا رہا ہے۔ پاک افواج نے 100 ارب روپے ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں خزانے میں جمع کرائے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ اہم پریس کانفرنس کی گئی، جس میں یہ تمام تر حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے۔ اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ ایران سے جو اسمگلنگ کی جاتی ہے اس پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر دونوں طرف سے ہوتا ہے، صرف ایک طرف نہیں ہوتا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 2000 سے زائد کلومیٹر پر مشتمل یہ بارڈر ہے جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس بارڈر پر ہماری تقریباً 1452 چیک پوسٹیں قائم ہیں، جبکہ جو افغانستان ہے اس کی طرف سے صرف 200 چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ ریسورسز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، سیکیورٹی ایشوز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ جو تیل کی اسمگلنگ ہوتی ہے اس پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پرمٹ کون ایشو کرتا ہے۔ یہ پرمٹ فوج یا ایف سی کا ادارہ ایشو نہیں کرتا، بلکہ جو پرمٹ ایشو کرتے ہیں ان سے سوال ہونا چاہیے۔ یہ اہم ترین معاملات ہیں جس حوالے سے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اور بتایا گیا کہ حالیہ دنوں میں جو آپریشنز کیے گئے ہیں اس میں کیا کامیابیاں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ علاقوں کو دہشت گردوں سے کلیئر کروایا گیا ہے، وہاں ان علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے اب کیا اقدامات پاک فوج کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں تعلیم پھیلانے کے حوالے سے بھی اقدامات شامل ہیں، جس میں صحت کی سہولیات دینے کے حوالے سے اقدامات شامل ہیں جو کہ پاک فوج اس وقت کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، پاک فوج کے ان اقدامات کو سراہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے بلوچستان کے حوالے سے تو وہاں پر بھی پاکستان افواج نے بے تحاشا تعمیر و ترقی کے کام کیے ہیں۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، ان سے اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا۔ فاروق حمید صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ بہت اہم ترین معاملات جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، خصوصاً جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا جا رہا تھا
उस पर उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज से एलेबोरेट किया और ये बताया कि पाक फ़ौज और एफसी नहीं है जो कि इसमें मुलव्विस है, बल्कि और बहुत से इदारे ऐसे हैं कि जिनकी इजाज़त से जो परमिट इशू करते हैं वहाँ से डीजल तेल की स्मगलिंग के हवाले से, उस बारे में भी जो है वो सवालात उठाए जाने चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। फारूक हमीद साहब की आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर वकार साहब, यही सवाल आपके सामने रखूंगा। सर, क्या कहेंगे इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक तो आज यौम इस्तिसाल था जो कश्मीर के लिए ऑब्जर्व कर रही है पाकिस्तानी कौम टू बेसिकली ऑफर देयर सेंटिमेंट्स फॉर कश्मीर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उसमें आई थिंक स्टार्ट उन्होंने उससे किया और उसमें डेफिनेटली पॉलिटिकल लेवल पे ऑलरेडी वज़ीर आज़म वहाँ पे हैं आज़ाद कश्मीर में, और मिलिट्री ने यहाँ से अपना जो भी सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट, उसका इजहार भी किया। और इंशाल्लाह कश्मीर पे हमने पहले भी 4 जंगें लड़ी हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो 5वीं लड़ाई भी होगी, लेकिन मेनली इसमें मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात हुई और इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। बाकी जो है आई थिंक 5-6 बड़े आई वुड से इश्यूज थे जिसको टच किया। एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की पूरी समरी उन्होंने दी, कितने ऑपरेशंस हुए हैं इस साल, और डेली सैंक्शन होते एफर्ट की जाती है कि पाकिस्तान की सरजमीन को और अवाम को जो महफूज किया जाए। फिर जो है जो SIFC से रिलेटेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है फौज की, बिकॉज ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ब्रिगेडियर वकार खान साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में तालीम, सेहत और साफ़ पानी की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में सड़कों और पुलों के अहम मनसूबे पाक फ़ौज के ताउन से मुकम्मल हुए। उन्होंने बताया कि CPAC के प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के लिए भी हज़ारों एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। स्मगलिंग से मुतालिक सवाल पर DGISPR ने कहा कि बलूचिस्तान के ईरानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में बुनियादी सहूलियात और रोज़गार की कमी है। बलूचिस्तान के इन इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद मुकम्मल तौर पर बंद कर दें तो माफिया को फ़ौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। ये उनकी जानिब से अहम तरीन मामलात पर बात की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और उनके नाम नेहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। गवादर में अगर जाएं वहां आपको हुकूमत की रिट मिलेगी। हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है। हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा कि आप सड़कें ब्लॉक करें। उन्होंने कहा कि हम सड़कें ब्लॉक करेंगे। आपने देखा कि इन लोगों ने आग भी लगाई। बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की एक प्रॉक्सी है। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी के सिवा कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रिगेडियर वकार खान साहब से एक बार फिर से हमारा रब्ता हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए DGISPR ने कहा कि ये दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है बलोच यकजहती कमेटी, जो कि दुश्मन मुल्क एजेंडे पर काम कर रही है। इस बारे में आपका क्या तबसरा है? जी बिल्कुल, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी देखें तो इसमें जो सब नेशनल ग्रुप हैं, BLA है, वो लोग भी शामिल हैं, और ये एक फ्रंट बना हुआ है। आपको याद होगा इस्लामाबाद में भी एक एफर्ट की गई थी भोंडी सी, एंड सम हमारी सिविल सोसाइटी, कुछ मीडिया हाउसेज इसमें इसका हिस्सा बने। लेकिन जो गवादर में उन्होंने किया जिसमें फौज पे असॉल्ट किया गया और एक हमारा जवान शहीद भी हुआ विदाउट रीजन, आप कह लें कि कोई उसमें रीजन नहीं थी, तो इस लिहाज से बिल्कुल दहशतगर्द तंजीम है। ये लोग अभी स्कैंडिनेविया से होके आए, इनको जितनी फंडिंग हो रही है सबको पता है। और फिर इनका बयानिया जो है, जो उन्होंने दिखाया भी कि भारत में बहुत रेजोनेट होता है, यानी भारतीय मीडिया इसको खुल के सपोर्ट करता है। सो ऑल टोल्ड ये बिल्कुल, और इनका टारगेट एक ही है कि CPAC 2 को जो है नाकाम करना है, खुदा न खास्ता, और इंतशार फैलाना है या क्योस क्रिएट करना है। और अगर आप फिगर्स देख लें जिस जैसे एजेंडा पे ये लोग चल रहे हैं, अगर फर्ज करें मिसिंग पर्सन का ले लें तो पाकिस्तान में तो रजिस्टर्ड जो है 2290 हैं टोटल, जिसमें 1000 की फैमिलीज को भी इंशाल्लाह फाइनेंशियल इमदाद भी दी जा रही है। भारत में तो 3,70,000 है। ब्रिगेडियर साहब से एक बार फिर से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक हमीद साहब, फरमाइएगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत अहम इशूज़ थे जो कि एड्रेस किए गए, खुसूसन जो दहशतगर्दी के हवाले से इशूज़ हैं बलूचिस्तान में और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, उस बारे में अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो है वो बात की। क्या तबसरा करेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है कि वो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, ताकि जितनी स्पेकुलेशन और जितना आभाम हो रहा है और डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं
वो दे शुड ऑल बी पुट टू रेस्ट। ये बलूचिस्तान के हवाले से बात बड़ी क्लियर हो गई है कि ये सारे लोग प्रॉक्सी हैं, और इस पे हमें कोई शक नहीं था, अवाम भी इस बात को समझती है, लेकिन सरकारी तौर पे अब बड़ा क्लियर हो गया ये मारंग बलोच और ये सारे ये प्रॉक्सी हैं। जैसे उन्होंने देखा कि अपना गवादर टेक ऑफ करने वाला है, नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट होने वाला है और वहाँ पे मामला तेजी से बढ़ रहे हैं और चाइनीज हाई लेवल लोग जो हैं उनका आना जाना बहुत शुरू हो गया है, सीपेक बहाल हो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या कि रखना डालो और हंगामा करो बीच में ताकि इस मामले को किसी तरह सबोटाज किया जाए। और ये बात तो क्लियर है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं वो तमाम लोग जो कि कहते तो हैं मिसिंग पर्सन, लेकिन एक्चुअली बड़े ऐसे लोग हैं जो कि इनके रिश्ते बनते हैं उन दहशतगर्दों से जो कि लड़ाई में मारे गए हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये आज बड़ा अच्छा हुआ है, बड़े अरसे के बाद देखें बलूचिस्तान हो गया, केपी हो गया, साबिक फाटा, ये इलाके हो गए, गिलगित बल्तिस्तान, इसने बड़े पैमाने पे फौज और एफसी ने, रेंजर्स ने, खासकर ये दो सूबे केपी और बलूचिस्तान, यहाँ पे बड़े पैमाने पर सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो है इन मामलात में इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले कई साल से। बलूचिस्तान में खासकर नवाब अकबर बुख्ती की डेथ के बाद तो एक बड़ा एक इनकलाब आया है एजुकेशन के हवाले से। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कैडेट कॉलेजेस हैं और ऐसे इदारे हैं, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के लिए इतने प्रोग्राम हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए थे। और इसी तरह जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है केपी में, साबिक फाटा में, स्कूल्स, कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मार्केट्स, बिजनेसेस, मिनरल डेवलपमेंट, तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें आज बताई हैं। बिकॉज काफ़ी अरसे से मैं भी इनको, मेरा भी पॉइंट ये होता था मीडिया पे कि भाई आवाम को ये चीज़ें बतानी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में जो एजुकेशन का निज़ाम है, हेल्थ का निज़ाम है और बाकी नेटवर्क, वोकेशनल ट्रेनिंग जो अफवाज पाकिस्तान सेटअप किया है पूरे पाकिस्तान में, बड़े शहरों में, छोटे सूबों में, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, फ्री मेडिकल एड और मेडिकल कॉलेजेस, ये आवाम को पता होना चाहिए चीज़ें कि ये फौज सिर्फ काउंटर टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, वो पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप में भी नहीं involved। समझते कि ये चंद अनासिर हैं जो कि इस चीज़ को निशाना बनाते हैं? अदरवाइज उन इलाकों की अगर बात करें जहां पर ये कंट्रीब्यूशन है पाक फौज की, चाहे वो तालीम के मैदान में या सेहत के मैदान में, उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के लोगों को जॉब्स मिल रही है ना जी। देखिए वहाँ पे जितने 150-200 स्कूल जो पिछली वॉर ऑन टेरर में तालिबान ने डिस्ट्रॉय किए थे, टीटीपी वालों ने, वो सब उसके बाद ज़रब अज़ब के बाद जनाब जब फौज का मुकम्मल कंट्रोल आया और उन्होंने एरिया को होल्ड किया, तो उसके बाद तो सब रिबिल्ट हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड, ब्रिजेस, मार्केट्स नहीं बनी है, स्कूल, बहुत ज़बरदस्त मैसिव डेवलपमेंट हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ह्यूमन रिसोर्स में की डेवलपमेंट पे बड़ा जोर दिया गया है, आईटी में, डिजिटल ट्रेनिंग में और बड़े बड़े शोबों में। तो ये मेरा मतलब ये है कि लोगों में ये बात आनी चाहिए। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ इसके ऊपर पूरी बुकलेट छापनी चाहिए, जिस तरह जो आज उनकी प्रेजेंटेशन थी, इट शुड कम इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, ताकि हमें पता लगे कि एग्जैक्टली अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि देखें इंतशार, मकसद सारा है पाकिस्तान इकोनॉमिकली टेक ऑफ ना करने पाए, मकसद सारा ये है, चाहे सी पैक हो, चाहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बाकी शोबों में, हमारे एक्सपोर्ट्स में, हमारी इंडस्ट्रीज में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सबोटाज किया जाए। और वो देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में बिजली के मसाइल हैं, इसी तरह गैस के बिल और ये तमाम चीज़ों ने लोगों को परेशान किया हुआ है। तो दे वांट टू ऐड फ्यूल टू द फायर। आग लगाओ, जितनी फेक न्यूज़ दो, जितना लोगों को लड़ाओ, फौज के साथ लड़ाओ, आपस में इनमें गैप क्रिएट करो ताकि अफरा तफरी हो, इंतशार हो और ऐसे हालात क्रिएट करो जैसे कीनिया में हुआ। ये फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से पहले भी बात की थी DGISPR ने, आज एक बार फिर से इन्होंने ये जिक्र किया, और चूंकि कश्मीर के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसका जिक्र भी आया कि यहाँ पर किस तरह से एक डिस इन्फॉर्मेशन लैब जो है वो काम करती है और कैसे झूठा बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है, इस बारे में बताइएगा। नहीं बिल्कुल, बात तो सही है। मैं तो खुद सोशल मीडिया पे 12-14 साल से मैं सोशल मीडिया को बड़ा स्टडी करता हूँ, मैं सोशल मीडिया में हिस्सा लेता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, बट आई एम सोशल मीडिया कमेंटेटर, और मैं देखता हूँ, ट्रेंड देखता हूँ कि क्या ट्रेंड है, और ट्रेंड बिल्कुल यही है, फौज को बदनाम करो, इदारों को बदनाम करो, लोगों को इनके खिलाफ खड़ा कर दो, जब फेक न्यूज़ जनरेट करो। अभी पीछे क्या 2 दिन पहले फेक न्यूज़ आई है कि फौज ने अपने जो हाजिर सर्विस अफसर हैं
हाजिर सर्विस हजारों की तादाद में, उनको जनाब लैपटॉप देख के लैपटॉप में बैठा दिया है कि जनाब आप डिजिटल जो जंग है सोशल मीडिया पे वो आप लड़े। तो खुदा का खौफ करो भाई, फौजी अफसर के पास इतना, सर्विंग अफसर के पास इतना टाइम है कि वो जनाब लैपटॉप पे बैठे 12-12 घंटे गुजारे। वो या तो LOC पे डिप्लॉयड है, वो सियाचिन में डिप्लॉयड है, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, वो तो उसको तो खाना खाने को टाइम नहीं है, तो वो आपके हाथ में लैपटॉप पे बैठेगा। ये जो आर्मी अवेयरनेस नेटवर्क के हवाले से जो परसों खबर आई थी, फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम इस वेबसाइट को लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि ये फेक न्यूज फैला है जान के, ताकि पाकिस्तान में ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है खुसूसन डिस इन्फॉर्मेशन लैब को जो है वो देखना, और इसके अलावा जो फेक न्यूज़ है इसका खात्मा। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।